A very good morning to all the students of class 9. I hope everyone is doing great and you're studying hard at home. So I have already sent you the revised version of notes for chapter 1 history. So it's depend on you. The choice is yours whether to note it down or not. The notes which I have sent in the previous notes which I have sent you, that is also correct, and the notes which I have sent you today, that is also correct. So it's depend on you which one is easier for you. You please note it down. Okay. So we were discussing on arguments for democracy. So we have discussed two arguments, or we have discussed 2 points why democracy is known as a better form of government. We have seen in the first point, democracy is better form of government than any other government, because the main reason is because democracy government is accountable to the needs of the people. Accountable, and democracy form of government is known as a accountable form of government who answer to the needs of the people. Because we have seen example from China, because China suffered a worse famine which was happened in the year 1958-1963. It was one of the most recorded in the world history, the worst ever famine. So because most of the economists, they say that it's happened, or in China many people lost their life because of their government policies, because China is not a democratic country, it is a communist country, because they didn't respond. The response of the government was not good because it was not a democratic form of government. Because we know that हम लोग को मालूम है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में रूलर्स का विशेष हो जाता है, वो अगर लोगों का नीड्स को रिस्पॉन्ड करो या ना करो उस पर निर्भर होता है। तो इसीलिए अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था गवर्नमेंट का, इसीलिए मोर देन 3 करोड़ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में मीन्स लोगों को फ्रीडम देता है, और डेमोक्रेसी में अच्छा रिस्पॉन्स होता है गवर्नमेंट का, लोगों का नीड्स का अच्छा रिस्पॉन्स होता है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। और अभी मीन्स जितना भी हिस्ट्री में देखा जाए, अभी भी मीन्स जो डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया है, जो देश इस दुनिया में, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा वर्स फेमाइन ऐसा मीन्स कभी देखने को नहीं मिला है। फेमाइन हुआ है लेकिन गवर्नमेंट का अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन चाइना में गवर्नमेंट का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, इसीलिए 3 करोड़ पीपल दे लॉस्ट देयर लाइफ। तो डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट मिल गया, बिकॉज इट्स एन अकाउंटेबल, बिकॉज इट्स democracy is accountable to the people, or it's accountable form of government. Accountable means answerable to the people, or answerable form of government माना जाता है। एंड नंबर 2, हम लोग नंबर 2 को भी देखा है, दैट इज democracy improves the quality of decision making. तो democracy नंबर 2 पॉइंट्स में why democracy is better form of government, because democracy में decision making बहुत अच्छा होता है, या डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी में डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेने से पहले बहुत सारा कंसल्टेशन, बहुत सारा लोगों का कंसल्टेशन करता है, और डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, और बहुत सारा जब ऐसा बैठ के डिस्कस करता है तो हाई चांसेस होता है कि एवरी ईच प्रॉब्लम को वो लोग मिस्टेक को पॉइंट आउट कर सके। तो इसलिए जो भी डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेसी में, एक अच्छा डिसीजन निकाल के आता है आउटकम। तो डेमोक्रेसी में हमेशा डिसीजन अच्छा होता है, और हाई चांसेस होता है डिसीजन अच्छा होने के लिए, बिकॉज बहुत सारा लोगों के साथ डिस्कशन करता है। तो बहुत सारा लोगों के साथ डिस्कशन करने से ईच एंड एवरी मिस्टेक को पॉइंट आउट कर सकता है, और अच्छा मीन्स अच्छा कदम और अच्छा डिसीजन ले सकता है। तो इन दैट वे वी कैन से दैट डेमोक्रेसी
is better form of government because it improves the decision making. That is point number 2. Then let's see today point number 3. This is related to the third argument. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. The third argument here, third point, why democracy is better form of government, because democracy provides method to deal with differences and conflicts. ये बहुत important point है. Democracy ऐसा form of government है जो provide करता है differences से deal करने के लिए, और अगर conflict dispute होता है in the society with different caste और different religion, अगर dispute होता है तो democracy उसका अच्छा समाधान है. Then let's see with example. In any society, people are bound to have differences of opinions and interests. कोई भी society में आप देख लो, लोगों का interest अलग है, लोगों का in any society आप देख लो, लोगों का interest और उन लोगों का opinions बहुत अलग होता है. उन लोगों का देखने का नज़रिया और उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत अलग होता है. एवरी सोसाइटी में each इंडिविजुअल का ही अलग होता है देखने का नज़रिया थिंग्स को, और उन लोगों का इंटरेस्ट भी अलग होता है. तो एवरी सोसाइटी में आपको मिलेगा उन लोगों का ओपिनियंस और इंटरेस्ट बहुत अलग होता है. देन these differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. और ये differences आपको particularly हम लोगों का country को example ले लो, इंडिया को, ये differences बहुत ज़्यादा है हम लोगों का country में. In our country like India, we have so much social diversity. यहाँ इंडिया में different religion, different caste, different class, different tribes, means अलग है सब, बहुत सारा differences है. कल्चर भी बहुत सारा differences है. तो हम लोगों का इंडिया को एग्जांपल ले लो, मीन्स पर्टिकुलरली हम लोगों का कंट्री को एग्जांपल ले लो, बहुत सारा सोशल डाइवर्सिटी आपको मिलेगा हम लोगों का कंट्री में. देन people belong to different regions, speak different language, practice different religions and have different castes. तो इंडिया में मीन्स different regions में, इंडिया का कोने कोने में लोग different, इंडिया का कोने कोने में अलग जगह में अलग मीन्स भाषा बोला जाता है इंडिया में, और अलग रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है अलग अलग रीजन में, और रिलीजन भी अलग प्रैक्टिस किया जाता है, और बहुत सारा खास है इंडिया में अलग अलग रीजन में. तो इतना सारा सोशल डाइवर्सिटी है हम लोगों का कंट्री में. तो हम लोग वन टुगेदर कैसा रहता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. देन they look at the world with differently and have different preferences. तो every society हम लोगों का इंडिया का एग्जांपल लेके हम लोग देख रहा है, क्योंकि हम लोगों का इंडिया जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है. हम लोगों का अलग रीजन में अलग खास मिलेगा आपको, मीन्स अलग रिलीजन मिलेगा, अलग भाषा बोलते हैं, अलग कल्चर प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, मीन्स पूरा इंडिया में. तो ये सारा इतना डिफरेंसेस है, तो इसको हम लोगों को एकता बन के रहने में क्या मदद कर रहा है हम लोगों का. और लोगों का देखने का नज़रिया अलग कास्ट का अलग है, और लोगों का देखने का नज़रिया मीन्स अलग रिलीजन का अलग तरह से वो लोग देखता है. देन वर्ल्ड को वो लोग डिफरेंटली देखता है, और उन लोगों का प्रेफरेंसेस, उन लोगों का चॉइसेस, इंटरेस्ट बहुत अलग है. देन the preferences of one group can clash with those of other groups. तो जो one group का इंटरेस्ट है वो अलग ग्रुप के साथ क्लैश हो सकता है. जैसे कि हमको ये मीन्स एग्जाम्पल वी कैन टेक एक ग्रुप को मीन्स एक ग्रुप को एग्जाम्पल, एक ग्रुप को मीन्स नेशनल हाईवे लाना है, मीन्स एग्जाम्पल इन ए पर्टिकुलर एरिया नेशनल हाईवे बनाना है. एक सोशल ग्रुप को मीन्स एक विलेज को, गांव को मीन्स नेशनल हाईवे
लाना है ऐसा इंटरेस्ट दिखाया है उन लोगों ने। फॉर एग्जांपल और अलग गांव का लोग वही सेम रीजन का वो लोग नहीं चाहता है कि नेशनल हाईवे आओ, मीन्स उन लोगों का गांव की तरफ, लेकिन एक गांव चाहता है कि नेशनल हाईवे आना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एक गांव चाहता है कि नेशनल हाईवे नहीं आना चाहिए। तो ऐसा एक सोशल ग्रुप का इंटरेस्ट अलग सोशल ग्रुप के साथ बहुत क्लैश होता है। यहाँ हम लोगों का इंडिया में ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग है। तो एक कम्युनिटी का इंटरेस्ट अलग कम्युनिटी के साथ क्लैश होता है। तो इसको ये सारा हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसा क्लैशेस ऐसा डिफरेंसेस को हम लोग कैसा रिजॉल्व करेगा, कैसा सॉल्व करेगा। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, और हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन है हम लोग ब्रूटल पावर मीन्स सख्त कदम लेके आर्मी या पुलिस को भेज के बाय प्रेशराइज करके उन लोगों को हटा के हम लोग जो भी करवाना चाहता है मीन्स प्रेशराइज करके करवा सकता है बाय यूजिंग ब्रूटल पावर। लेकिन वो ब्रूटल पावर यूज करने में डिसएडवांटेज होता है उसमें। तो हम लोग जो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है बाय ब्रूटल पावर, लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं है। Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept that। तो ऐसा जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक सोशल कम्युनिटी और दूसरा सोशल कम्युनिटी के साथ, तो ऐसा ही होता है कि जो ज़्यादा पावरफुल है वही जीत जाता है और अलग कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाय एनी मीन्स वो लोग दिल से एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन अपना जो इंटरेस्ट है उसको गिव अप करना पड़ जाता है। Then in such situation what will happen? Let's see. But that would lead to resentment and unhappiness। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा हुआ by using brutal power मीन्स ब्रूटल सख्त कदम उठा के प्रेशराइज करके उसको उन लोगों को मनवा मीन्स प्रेशराइज डाल के फोर्स करके मीन्स जो भी करना चाहता है उसको एक्सेप्ट अगर ऐसा करवाता है, या अगर जो पावरफुल कम्युनिटी है वो ओवरटेक कर लेता है, तो एक मीन्स ये मीन्स इन द लॉन्ग रन अच्छा नहीं है, क्योंकि but that will lead to resentment and unhappiness। तो अगर ऐसा ब्रूटल पावर यूज करके बाय फोर्स एक्सेप्ट करने में मजबूर करता है अलग कम्युनिटी को, या ट्रू मीन्स पावर मीन्स एक कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए ट्रू प्रेशराइज करके एक कम्युनिटी पर मीन्स उसका इंटरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये सारा अगर ऐसा प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन करना से ये सारा क्या लाएगा, रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। रिसेंटमेंट मीन्स एंगर, ये गुस्सा लाएगा सोसाइटी में, एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी में हैप्पी नहीं रहेगा, अनहैप्पीनेस रहेगा। हमेशा एक कम्युनिटी का अगेंस्ट रहेगा, तो ऐसा ये अच्छा समाधान नहीं माना जाता है। लेट्स सी व्हिच विल बी द गुड solution then। Different groups may not be able to live together for long in a such way। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम का हम लोग समाधान करता है तो अलग कम्युनिटी और जो कम्युनिटी जो पावरफुल है उसके बीच हमेशा दरार रहेगा और हमेशा गुस्सा और अनहैप्पीनेस देखने को मिलेगा, और ये लॉन्ग रन के लिए, ये फ्यूचर के लिए, सोसाइटी का फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। देन डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो हम लोग वन वे ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा डिस्प्यूट कम्युनिटी या सोशल डिस्प्यूट को हम लोग सॉल्व कर सकता है बाय एडॉप्टिंग द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी में अच्छा सॉल्यूशन लाता है ऐसा डिस्प्यूट को। हम लोग ब्रूटल पावर या पावर मीन्स प्रेशराइज करके सॉल्यूशन मीन्स अगर ऐसा करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाता है
तो वो एंगर और अनहैप्पीनेस फैलाता है सोसाइटी में। तो इसीलिए अच्छा समाधान लाने के लिए डेमोक्रेसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म या अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, जो पीसफुल सॉल्यूशन लाता है टू एवरी प्रॉब्लम। दैट in democracy, no one is permanent winner, no one is a permanent loser. तो डेमोक्रेसी में यही माना जाता है कि no one is permanent winner। कोई भी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स में कोई भी परमानेंट विनर नहीं है या कोई भी परमानेंट लूजर नहीं माना जाता है डेमोक्रेसी में। Then different groups can live with one another peacefully। और डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट वो लोग आराम से पीसफुल इन हार्मनी वो लोग एक दूसरे के साथ रह सकता है। तो डेमोक्रेसी एक अच्छा सॉल्यूशन है ये सोशल डिस्प्यूट का या कोई भी मीन्स प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में, इसका अच्छा समाधान लाता है डेमोक्रेसी इन ए पीसफुल वे। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो हम लोगों का इतना डाइवर्सिटी, हम लोगों का मोर देन 8 रिलीजन्स है इंडिया में जो लोग फॉलो करता है, मोर देन 8 रिलीजन्स। एंड एट द सेम टाइम जो हम लोगों का ट्राइब से, जो खास से, जो क्लास से, इसको गिनना से बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, लेकिन हम लोगों का कंट्री टुगेदर कैसा रह रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसा हम लोग मीन्स प्रमोट कर रहा है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोगों का देश को डेमोक्रेसी जोड़ के रखा हुआ है। 28 स्टेट 9 यूनियन टेरिटरीज को डेमोक्रेसी जोड़ के रखा हुआ है। डोंट फॉरगेट दैट। बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी आवर कंट्री इज अलाइव एंड वी आर लिविंग टुगेदर। तो डेमोक्रेसी हम लोगों को इसी एग्जाम्पल से ये मिला है, ये पॉइंट मिला है कि डेमोक्रेसी डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट के साथ अच्छा मीन्स डील कर सकता है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पीसफुल सॉल्यूशन लाता है इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज पॉइंट नंबर 3। तो हम लोगों का कंट्री को एग्जांपल देख लो, इतना सोशल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग टुगेदर वी आर लिविंग इन हार्मोनी, पीसफुल वे हम लोग एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट करके, एक सोसाइटी को रेस्पेक्ट करके हम लोग रह रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी वी adopted by our country, we adopt democracy, that's why we are living together। and कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम को डेमोक्रेसी अच्छा समाधान लाता है, अच्छा सॉल्यूशन लाता है। तो पॉइंट नंबर 3, डेमोक्रेसी अच्छा डील करता है डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट के साथ। Then let's see next point. These 3 arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life। और जो हम लोग 3 arguments देखा है, point number 1, democracy is best form of government because it is accountable to the people। और point number 2, democracy improve the quality of decision making। point number 3, democracy provides a method to deal with differences and conflicts। तो ये सारा 3 पॉइंट्स हम लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट्स देखा है डेमोक्रेसी का बारे में, ये ज़्यादातर डेमोक्रेसी का इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ में ही ये ज़्यादातर असर और डेमोक्रेसी का ये इफेक्ट हम लोग देखा है। But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government। लेकिन जो strongest argument है डेमोक्रेसी का बारे में, जो arguments है डेमोक्रेसी का बारे में, जो strongest argument है डेमोक्रेसी का, वो है it is not about what democracy does to the government। तो strongest argument डेमोक्रेसी के बारे में यही है कि ये मीन्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स है डेमोक्रेसी का बारे में वो है कि डेमोक्रेसी क्या करता है गवर्नमेंट को और सोशल लाइफ को कैसा असर करता है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में।
क्या स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी का बारे में? लेट्स सी। इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी का। क्यों डेमोक्रेसी को एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट माना जाता है कि डेमोक्रेसी क्या करता है सिटीजन को और डेमोक्रेसी का क्या असर होता है सिटीजन पर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी का। Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other forms of government. तो डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी अच्छा डिसीजन नहीं लाता है या अकाउंटेबल गवर्नमेंट अगर नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन ये सब नहीं होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी को अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है दूसरा गवर्नमेंट की कंपेयर में। क्यों? द रीजन इज वी विल गेट नाउ पॉइंट नंबर 4। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन बिकॉज डेमोक्रेसी सिटीजन का डिग्निटी को अपलिफ्ट करता है। मीन्स डिग्निटी ऑफ सिटीजन, पूरा लोगों का डिग्निटी को वो अपलिफ्टमेंट करता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट करता है। इसीलिए डेमोक्रेसी को सबसे बेटर एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। अगर डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग में अच्छा नहीं होना से भी और मीन्स एक आंसरेबल गवर्नमेंट नहीं होना से भी डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है बिकॉज ये सिटीजन का डिग्निटी को अपलिफ्ट करता है, इसीलिए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है डेमोक्रेसी को। As we have discussed above, democracy is based on the principle of political equality. तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो बेसिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी सबको इक्वली ट्रीट करता है डेमोक्रेसी में। On recognizing that poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. तो इन डेमोक्रेसी जो भी पोर है, जो गरीब है, वो लोग भी सेम स्टेटस होता है, जो रिच और एजुकेटेड जैसा स्टेटस मिलता है, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वालिटी सबको मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल्स यही है कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट करेगा इन द आई ऑफ लॉ और पॉलिटिकल इक्वलिटी सबको इक्वली मिलेगा। तो इसलिए सेम स्टेटस हो जाता है और इन द रिच एंड एजुकेटेड का स्टेटस भी। दैट पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर का सब्जेक्ट नहीं है सिटीजन्स लोग, पब्लिक लोग, दे आर द रूलर देमसेल्फ। तो डेमोक्रेसी में रूलर का सब्जेक्ट नहीं माना जाता है मीन्स पीपल लोगों को, क्योंकि लोगों ही खुद रूलर माना जाता है, क्योंकि अपना रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा से हम लोग अपने आप को रूल करता है डेमोक्रेसी में। Even when they make mistake, they are responsible for their conduct. अगर जो हम लोग मिस्टेक करता है, अगर लोग मिस्टेक करता है तो हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है हम लोगों का मिस्टेक के लिए। अगर रूलर मिस्टेक करता है तो हम लोग खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग उसको चुना है। तो डेमोक्रेसी को इसीलिए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ जनता लोग अपने आप को रूल करता है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। देन विल सी द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स टुमारो। थैंक यू वेरी मच।